Praise the Lord. Let us all stand in the presence of God. Tell the Lord in your perfect time, you make everything beautiful, Father. In the times of troubles, in the long waits, you give me grace. Tell the Lord, you help me, Lord. Father, give me the patience to wait. परमेश्वर मुझे इंतजार करने की कृपा दे दीजिए. Lord, give me the patience to wait for the परमेश्वर blessings from heaven. स्वर्ग की आशीषों के लिए इंतजार करने की कृपा मुझे दे दीजिए. It says that Moses had to wait 80 long years to prepare for 40 years of travel. मूसा वचन कहता है कि मूसा को लंबी 80 सालों तक इंतजार करना पड़ा ताकि वो आगे की 40 साल तक परमेश्वर की सेवकाई कर पाए. In the correct time, Lord, open ways. वो सही समय पर परमेश्वर द्वार खोलेंगे. Tell the Lord, Father, give me the patience to wait in your perfect time. परमेश्वर से बोलिए, मांगिए कि उनके उत्तम समय के लिए, सही समय के लिए, उस समय तक इंतजार करने की कृपा दे दीजिए. Let us sing song. In His time, in His time, you make all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, as you do just what you say in His time. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, as you do just what you say in your time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, as you do just what you say in your time. Tell the Lord in your beautiful time, Father, we ask for your presence, your mighty presence. Fill us with your power, Lord. Tell the Lord, fill your spirit in me. Let your presence overflow within me, Father. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ बह जाए. Let the Holy Spirit move within each and every one of you. पवित्र आत्मा हम सबके हर एक के अंदर बह जाए. Wherever you're standing, tell the Lord, you touch me. जहाँ कहीं भी आप खड़े हैं, वहाँ जह के परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर मुझे भरिए. You touch the innermost depths of my heart, Father. मेरे दिल की गहराई को आप छूइए प्रभु. Lord, you give me the grace to move every day. परमेश्वर हर एक दिन चलने की कृपा मुझे दे दीजिए. Let us tell the Lord, Lord, you touch me today, Father. परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मुझे छूइए. Let us sing one more song and worship God. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days.
Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Kingdom, oh, blessing and glory, bow at your throne in worship be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Aradhana, from every nation, bow before the Ancient of Days. Oh, kingdom, glory and power. सब मिलकर आराधना कीजिए परमेश्वर की उपस्थिति में उनके मंगल आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। अंतिम दिनों में आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाले लोग परमेश्वर ये चाहते हैं आराधना करे। हमारा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, वो चंगा करता हाथों से छूकर हाथ उसके पास। बहता उसका लहू, बहता उसका लहू क्रूस के तले, श्वा बहता उसका लहू क्रूस के तले। आई जो भी उसके पास देता वो छुटकारा, देता वो छुटकारा। आराधना, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो परमेश्वर आपकी आराधना करने की कृपा में दे दीजिए, उसके लिए ताकत दे दीजिए। ओ सर मुसीबत में, सारे परेशानियों में, हर संकट के समय में आपकी आराधना करने की कृपा दे दीजिए। ओहो यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, आपकी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, आपकी आशीषों से वो भरेगा तेरे
वो खोलेगा हमारे लिए द्वार। विश्वास के साथ इन पंक्तियों को गाइए। पाप और शाप होंगे दूर यीशु के लहू से, होंगे दूर यीशु के लहू से, वो शाप होंगे दूर। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना जिसमें भी प्राण है, जिसके भी अंदर थोड़ा सा भी जान है, वो सब परमेश्वर की स्तुति गाए, वो सब परमेश्वर की आराधना करे। आत्मा से उनकी आराधना, सच्चाई से उनकी आराधना, दिल की गहराई से उनकी आराधना। आराधना बशमदे की राजा शमदे रेखे, दिखाना हंसते रेखे। ओ शबनादा धीरा जाना, हस्ताना धूड़ा जाना, वैशाना धीरा रखे रे। ओ रीवा शबनादल भौड़े तेरे, हंसते ले रेखे रीवा, वैशाना धूड़ा जाना, दिखा राजा हस्ताना धूड़ा बनादला, हम धेले रेखे रेखे, धूड़ा राजा हंसते लेखे। दीवाना हस्ताना तेरे सामने, प्रभु ने दे दी विजय, दे दी विजय। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुट कर केवल यीशु ही में है आराधना, में यीशु ही में है। आराधना हो शबना तारा हमने पहले हो से खेरी तेरे खेरी खेरे में शबना दे से राजा हंसता रावा, रावा शब्द गले राजा हंसते लेखे, वैशाला धीरा जाना, हंसते लेखे रीवा, वैशाला धूड़ा जाना, अदराजा दक्षे गले, वैशले धीरा रमले, राजा रक्षम गले गले, तेरे खेरी बाराबा, हस्ताना शबराजला, बाबा हंसते खेले, हरियाणा शबला राजा, हंसते ले खेले खेले, वैशले धूड़ा जाना, हंसते खेले राजला, वैशाला धीरा बराजला। ओ जिसमें भी प्राण है, जिसमें भी चीज है, ओ जिस चीज पे जान है, थोड़ा सा भी बचा है, वो सब प्रभु की आराधना करे। हो तेरा बशम दबले हमने हो रीवा, वैशाला थे राजा नसे रीवा, वैशाला धूड़ा बलादला, तारा बशम दे खेले, वैशाला धूड़ा जाना, हंसले खेरीवा, वैशाला धूड़ा राजे, वैशाला पीरा जगरे, वैशाला खेले खेले, हंसला थे बाबा हंसता बलादला, बाबा हंसते खेले, बाबा हंसते खेले, बाबा हंसले खेले खेले, बरबार शब्द बरबले। जिसके भी पास अन्य भाषा का वरदान है, प्रभु की स्तुति करे, परमेश्वर की स्तुति गाए, परमेश्वर की स्तुति गाए। हालेलुया, वो उसकी योग्य है, वो परमेश्वर स्तुति और आराधना की योग्य है। सोना जानते वशानते तेरी धीरा रबला, हस्ताना धीरा रबला, शब्दबला दला ताबला ताबा हंसते खेले, ताबा हंसते खेले, तबरा जल भौडार गले, हंसले तेरी बा वशाना धूड़ा जाना, अदरा जल भौडा बरबले, तेरा जाल क्षमते लेके तेरे के बाराबा ताबा ताबा हंसते खेले, बाराबा हंसते बरबले, ताबा हंसते लेके, तेरा जाला शब्द बरबले, तेरा जाल रक्षाराबा, तोरा बसे लेके रम धीरा धारा, ताबा ते खेले धीरा धारा। ओ अंतिम दिनों में मैं सब जाति के ऊपर, सारे शरीर के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, वो परमेश्वर का वचन है। ओ तेरी शब्द गराजला वशबरा, थैंक यू लॉर्ड। ये वशमा धरसे, Tell the Lord, we are here to worship you, Father. परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हैं। जीसस।
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। सभी गाए ओ हम गाए हो सना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। इसलिए हम गाए हो सना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। आप ही राजा है, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं का राजा। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। ओ हम गाए हो सना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय में आराधना करने की कृपा हम सबको देने के लिए धन्यवाद करते हैं। पल पल में जो भलाई आपने हमारी ज़िंदगी में की है, इसको याद करके, उसको गिनती करके परमेश्वर की उपस्थिति में आपके धन्यवाद करने के लिए, आपको महिमा चढ़ाने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए हमें कृपा कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर, इस सौभाग्य को हमारे ज़िंदगी में देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस पूरी सेवकाई का पूरा नियंत्रण आप ही ले। आराधना की सारी महिमा, सारे प्रशंसा परमेश्वर यीशु मसीह की ही हो जाए। Oh Jesus, take me past the outer court into your holy place, past the brazen altar. Lord, I want to see your face. Pass me by the crowds of people and the priests to sing your praise. I hunger and thirst for your righteousness, but it's only found in one place.
Take me into the holy of holies. Take me in by the blood of the Lamb. Take me into the holy of holies. Take the cold, touch my lips. Here I am, Lord. I worship you. I worship you, आराधना करते हैं प्रभु। Lord. ओ परमेश्वर यीशुआ, हम आपकी आराधना करते हैं। ओ आप आराधना के योग्य है, Lord, I आप भी आराधना के योग्य है। worship you. Sing it, church. यीशुआ, Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I हमारी जिंदगी में परमेश्वर, ओ हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु की आराधना कीजिए। I जिंदा रहने के लिए परमेश्वर की भलाई और गुणगान को वर्णन कीजिए, की आराधना कीजिए। अंतरिक्ष में प्रभु की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, उसको महसूस कीजिए। For your name is holy. यीशुआ, यीशुआ, Holy. यीशुआ, For your name is महिमा हो, आपकी महिमा हो, holy, आपकी Lord. स्तुति हो, आपकी आराधना हो। We worship you, Lord. हम आपकी आराधना करते हैं। Tell the Lord, El Shaddai, we come in your presence. परमेश्वर की उपस्थिति में आए। When the Israelites faced difficulties, when the Israelites faced war, जब इस्राएलियों ने परमेश्वर से चिल्लाया, रोया, when they faced persecution, जब उनको बहुत मुसीबतें, मुश्किलें आई, they used to let out a cry to heaven. वो स्वर्ग की ओर देखकर चिल्लाए। They said, El Shaddai, El Shaddai. उन्होंने कहा कि एल शदाई, एल My शदाई, Lord, help me, Father. ओ मेरे परमेश्वर मेरी सहायता Can we कीजिए। say, Lord, El Shaddai? क्या हम भी हम परमेश्वर से बोले, ओ एल शदाई परमेश्वर। Let us sing the song. It goes, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, He's still the same. By the power of your name, El Shaddai, सर्वशक्तिमान El परमेश्वर, Shaddai, एल शदाई का अर्थ है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। Age to age, उनके लिए you're कुछ भी still the same. असंभव नहीं है। El Shaddai, El सब Shaddai, कुछ करने वाला El सामर्थी Shaddai, परमेश्वर, El Shaddai, परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार पाने वाला परमेश्वर। यस लॉर्ड, power of your name, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, उनसे कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास करके गाइए, परमेश्वर को स्तुति कीजिए उन पर के विश्वास से। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है वो। Can we sing a song? El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, yes, hallelujah, El El Shaddai. Shaddai, El Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. The lyrics goes, El Shaddai, El Shaddai, उसकी पंक्तियां है एल शदाई, El Elyon Adonai. एल एलियोना अदोनाई। Age to age, you're still the same. वो युग युग से वो ही परमेश्वर है। We are here by the power of your name. और उनके नाम की सामर्थ्य के कारण The हम power सब of यहाँ the name, हैं। the power of the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम का सामर्थ्य, The power of the name of God, the earth trembled.
यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य ही उतना है। There is no power that can stand against the और name of कोई Jesus. शक्ति नहीं जो उनके नाम के सामने खड़ा हो That is the पाए। name that you and I call Father. वो ही परमेश्वर है जिनको आप और मैं पुकारते हैं। That is the same name we call Abba Father. वो ही हम परम प्रधान पिता परमेश्वर बोलते हैं। Tell the Lord, you touch me, Father. ओ परमेश्वर से बोलिए कि मुझे छूइए प्रभु। We are crying out to you, Lord. हम आपकी ओर देखिए चिल्ला रहे हैं। Can we just sing it? El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Father, we thank you for this wonderful prayer. Lord, let your Holy Spirit touch us, Lord. Yes, Lord. Let your Holy Spirit move within us, Lord. Let your Holy Spirit talk to us from the word, Lord. Lord, we, your children, have called out your name, Father. Lord, you give ear unto us, Lord. Lord, you listen to us from heavens, Lord. Let our praises rise up to the heavens, Lord. We thank you for this wonderful time, this wonderful opportunity to worship you, Father. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. भजन संहिता 128। Psalm 128. क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। For thou shalt eat the labor of thine hands, happy shall be, and it shall be. Thy wife shall be as fruitful vine by the sides of thine house, thy children like olive plants round about thy table. Behold, thus the यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। आखिरी वचन एक साथ। वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। आइए हर एक लोग अपने आंखों को बंद करें, हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे हर एक भलाई के लिए। धन्यवाद प्रभु तेरे हर एक उपकार के लिए। प्रभु तू मेरे जीवन में करता है प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु इस योग्य नहीं था पिता कि प्रभु जी हम इस स्थान पे खड़े हो, लेकिन परमेश्वर आपने इस योग्य बनाया। प्रभु आपने गले से लगाया है पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु ये समय के लिए। प्रभु तूने मेरे जीवन में एक दिन को बढ़ा दिया था खुदा, आज के दिन को दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद। हम सब के जीवन में प्रभु जी आपने आज के संध्या को दिया है खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। हम सब मिलकर प्रभु आपके नाम को धन्य कहने के लिए इस स्थान पे इकट्ठे हुए हैं। खुदावंत हमारे जीवन में प्रभु कुछ भी गलत बातें होंगी, कुछ पाप होगा प्रभु, उसे हमें क्षमा कर खुदा। पवित्रता से हम आपको धन्यवाद बलिदान चढ़ा सके खुदा, क्योंकि परमेश्वर आप किसी भी प्रकार से बलिदान से परमेश्वर आप प्रसन्न नहीं होते, केवल धन्यवाद के बलिदान से आप प्रभु जी प्रसन्न होते हैं पिता। हमारे जीवन से परमेश्वर हम आपको धन्यवाद बलिदान देने के लिए इस स्थान पे है प्रभु, सहायता कर पिता। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं समय जितने लोग आए हैं खुदा, हर एक के प्राण आत्मा शरीर को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा। जिन जिन बातों की चिंता लेकर आए हैं खुदा, उन्हें परमेश्वर आप अपने वचन के अनुसार प्रभु उन्हें चंगाई दे खुदा, आप छुटकारा दे। आपने वचन में कहा है, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु अपने वचन से आप हमें विश्राम दीजिए आज के दिन खुदा। प्रभु यीशु हम अपने जीवन की चिंताओं में और परमेश्वर रोटी कपड़ा के पीछे परमेश्वर हम डूब जाते हैं खुदा, हम भूल जाते हैं हमारे पीछे आप परमेश्वर जो दृढ़गढ़ है परमेश्वर, आप ही हमारा चट्टान है, हम भूल जाते हैं पिता। प्रभु हमें क्षमा कर पिता, हम आपके वचन की ओर देख के परमेश्वर दृढ़ता से इस संसार में प्रभु जी आपके वचन को लेके जयवंत खड़े होने की शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु। हालेलुया। आने वाले समय में प्रभु जी ये स्थान में प्रभु जी तेरी आत्मिक जागृति आने पाए खुदा, ये चर्च प्रभु यीशु मसीह के नाम से हिंदी कलीसिया पूरा भर जाने पाए खुदा, सहायता कर प्रभु। प्रभु आपके आत्मिक क्षेत्र इस स्थान पे खुलने पाए खुदा। हमारी यही छोटी सी प्रार्थना है खुदा, हमारे देश, हमारे गाँव और हमारे लोगों को प्रभु
बचा ले प्रभु, कोई भी नाश ना होने पाए खुदा, सहायता कर खुदा। इस समय प्रभु जी हम जब शांतिपूर्वक परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए इस स्थान पे है खुदा, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे खुदा। हम परमेश्वर आपके वचन को सुन के खुदा आत्मिक जीवन और परमेश्वर चट्टान में मजबूत हो जाए प्रभु, सहायता कर खुदा। केवल आपके वचन ही हमें स्थिर कर सकता है खुदा, सहायता कर। आपने हमारी विनती सुना है यीशु के नाम में स्वर्गीय पिता, आमीन। Please be seated. Please be seated. बैठिए। Good evening to you all. Greetings in the matchless name of Jesus Christ. सबको यीशु मसीह के अनोखे नाम से प्यार का नमस्कार कहते हैं। We hope that you all are doing good. हम आशा करते, विश्वास करते हैं कि आप सब ठीक है, अच्छे हैं। If we say something here in this platform, it can reach to the India, because most from majority of the Indian states people are here, and it is our pleasure to have you all here. भारत के अलग अलग राज्यों में से लोग इस कलीसिया में हैं, इसके लिए हम परमेश्वर का शुक्रिया भी अदा करते हैं। Greetings to you all. Without much introduction, we are directly going to the Word of God. हम परमेश्वर के वचन की ओर बिना परिचय के सीधा जाते हैं। This month we were learning about the discipleship. इन महीनों में हम शिष्य होने के बारे में सीखते आ रहे हैं। Lord Jesus went to different places and यीशु मसीह खुद अलग अलग जगह गए। He called certain ordinary people and made them an extraordinary for उन्होंने His kingdom. साधारण लोगों को बुलाया और असाधारण तरीके में उनका इस्तेमाल किया। And in this generation, the Holy Spirit is seeking for the same. और पवित्र आत्मा इन दिनों में भी उसी की तलाश में है। He uses the ordinary people, वो हमेशा साधारण लोगों को इस्तेमाल करके and He wants you to be useful for His kingdom. और वो ये चाहता है कि आप उनके राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाए। I think during the last our Holy Communion service, पिछले हमारे पवित्र मेज की सेवकाई के दिन most of our Hindi and English speaking community, you'll be coming bit late. हमारे हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोग थोड़े देरी से आते हैं। I didn't see anyone here. Most of you might have seated in the ground floor. मैंने कलीसिया के अंदर आपको नहीं देखा, शायद बहुत से लोग नीचे के पंतल में ही बैठे होंगे। There was a testimony from one sister who was from Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश से आने वाली एक बहन की गवाही थी। She was tested HIV, HIV से वो बीमारी उनको थी, and by God's grace she got healed completely. लेकिन परमेश्वर की कृपा से वो बिल्कुल चंगी हो गई। अस्पताल से रिपोर्ट के लिए लेके वो आके गवाही बोले। In these days you are going to hear wonderful testimonies, mighty more than that. इन आने वाले दिनों में भी आप उससे भी अधिक सामर्थी तरीके की गवाही सुनने वाले हैं। And let us turn to the scripture. हम पवित्र शास्त्र के ओर जाए। If you have Bible with you, I request you to please open Gospel of Matthew chapter 10 verses 16. अगर आपके पास बाइबल है तो मैं विनती करता हूँ कि आप मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय खोलें और उसका Gospel of Matthew chapter 10 verses 16. 16वां वचन पढ़ते। Behold, I am sending you out as sheep in the midst of wolves. So be wise as serpent and innocent as doves. This verse instructs believers. Okay. देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। Bible says, बाइबल कहता है, can we read it together? Behold, क्या हम सब अपनी अपनी भाषाओं में पढ़े? I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. There are Lord is talking about certain common animals and birds, and He is comparing His disciples with them. और यहाँ यीशु मसीह कुछ साधारण जानवरों की तुलना करके अपने शिष्यों को कुछ सिखाना चाहता है। Altogether there were 4 creatures or 4 like animal, including animals and bird together. There were 4. जानवर और पक्षी मिलके यहाँ इस वचन में 4 प्राणियों के बारे में लिखा है। If you are smart enough, you can, without seeing the Bible, you may kindly repeat with me. The first one. कौन से जानवरों के बारे में लिखा है? बोल सकता है और English, which is convenient for you. In that one, you may kindly read it. Which one is first? Bekri. भेड़ों के समान भेड़, like a sheep. Second one? भेड़ी, भेड़िया. Wolf. Third one? सांप. Samp. Okay, snake.
Fourth one, कबूतर। dove. You know, disciples are similar to whom? शिष्य किसके समान है? भेड़ों के समान, भेड़ के समान। Okay. You are like sheep sending towards वुल्फ, wolf. भेड़ों के समान, भेड़ियों के बीच में परमेश्वर हमें भेजता है। Lord, I am not interested in this game. We can do it in the reverse manner. We are wolf, we will go. ओ परमेश्वर, मुझे इस तरह के खेल पसंद नहीं, हम उल्टा खेल खेलेंगे ताकि हम भेड़िया बन जाए और भेड़ों के पास जाए। But anyway, the match was fixed. God had appointed us as the लेकिन sheep. खेल तो बिल्कुल पक्का है, परमेश्वर ने ऐसे ही रखा है और हमें भेड़ों के समान भेजा गया है। Pastor Ji, that is very true. After the prayer meeting, when I am going there, I am feeling that inside my house, I am the only one lamb. The rest all are looking like a wolf and lions and tigers. ओ पासवान, वो तो बिल्कुल सच है। जब मैं ये प्रार्थना समाप्त करके कलीसिया से वापस घर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पूरे घर में सिर्फ मैं ही अकेला एक भेड़ हूँ। When I am going to office, there are a lot of wolves and lions and shares all are there. मुझे लगता है कि मेरे चारों तरफ बहुत से भेड़िया है, सिंह है, जंगली जानवर है। They are seeking for one silly complaint on me. वो तो छोटे छोटे शिकायत मेरे ऊपर खोज रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। What does it truly mean? ये वाक्य ही इस वचन का अर्थ क्या है? Bible says बाइबल कहता है, we are going to learn little bit about the sheep and the wolf today. आज के दिन हम थोड़े से भेड़ के बारे में और भेड़िया के बारे में And हम how सोचेंगे। God will like lead us, that also we are going to learn. कैसे परमेश्वर हमें चलाते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। Meanwhile, when you are listening to the word of God, जब आप प्रभु के वचन को सुनेंगे, Holy Spirit is speaking that somebody who is having the pain on the stomach, this portion, when you are sitting here, still you have the pain, Lord is healing you. परमेश्वर का आत्मा इसी के बीच में मुझसे इस तरह कहता है, मजबूर कर रहा है कि किसी के पेट में दर्द है, वचन सुनते सुनते ही परमेश्वर को चंगा करेंगे। Shall we close our eyes and have a word of prayer? क्या हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना I am करें? seeing a lady who is having a tumor on the stomach and Lord is healing you. मैं एक औरत को देखता हूँ जिनके पेट में ट्यूमर है और परमेश्वर उसे चंगा कर रहा है। And again, the Spirit of God is not allowing me to move further. परमेश्वर का आत्मा मुझे बहुत मजबूर कर रहा है कि इस विषय के लिए प्रार्थना करूं। Shall we pray for a while? क्या हम प्रार्थना करें एक पल के लिए? Abba, Heavenly Father, we thank you for this blessed time. पिता परमेश्वर, इस अनुग्रहित समय के लिए धन्यवाद। At the cool day in the evening, Lord was walking in the Eden of garden. वो अदन की वाटिका में सांझ होते ही परमेश्वर मनुष्य के साथ चलता रहा। Similarly, thank you, Holy Spirit, that you are walking in the midst of this congregation. इसी तरह इस समूह में इस कलीसिया में भी पवित्र आत्मा चलने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, thank you for touching your children. आपके बच्चों को आप छूने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। You are the God who is the healer. आप ही चंगाई देने वाला परमेश्वर है। You are the God who is the healer. आप चंगाई देने वाला परमेश्वर है। Today evening, you touch your people. आज शाम को आप अपने बच्चों को Let छूइए them प्रभु। receive your healing. परमेश्वर की ओर से चंगाई वो What are पाए। the problems of tumor, the stomach pain? Let it erase from that body. उस पेट के सारे ट्यूमर, सारे पेट के दर्द यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। The one who is having difficulty over the left side of forehead, let it be healed. माथे के बाएं साइड पर जिनको भी तकलीफ और दर्द है वो चंगे हो जाए। May God release the anointing. परमेश्वर अभिषेक को रिलीज Deliver करे। your children. वो आपके बच्चों को छुड़ाइए As we प्रभु। meditate from your holy word, जैसा हम आपके पवित्र वचन से ध्यान करते हैं, you do bless your children. आप ही अपने बच्चों को आशीर्वाद कीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Sister, you are getting healed. 1, 2, 3, 4, 5th row. What's her name? Sunil Kumar brothers' wife. सुनील भैया के पत्नी का नाम। Lord is touching you, sister. परमेश्वर आपको छू रहा है बहन। Your difficulties God is removing from your आपकी body. सारी तकलीफें परमेश्वर के शरीर से दूर कर रहा है। Lord is caring for you. परमेश्वर आपके लिए संभालता है। The burdens Lord is removing from your life. आपकी जिंदगी के सारे भार और बोझ को परमेश्वर निकाल रहे हैं।
No need to put your anxiety. ओ परेशान होने की, दुखी और उदास होने की जरूरत नहीं How है। the things would be. कैसे काम How होगा, I can go further. कैसे मैं आगे बढ़ूंगी, Like how a new cloth or a washed cloth is been taken out. कैसे एक धोए हुए कपड़े को बाहर निकालता है। Lord is opening certain new areas in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ नई मंडलियां खोल रहा है। He is healing your stomach pain. आपके पेट के दर्द को परमेश्वर चंगा कर रहा Lord, है। thank you for touching her. परमेश्र उस बहन के लिए धन्यवाद करते हैं, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। Jesus। Please be seated. Okay. We are going to learn certain portions from the Bible. कुछ भाग बाइबल में से आप सीखेंगे। Behold, I send you like देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों Behold, के I बीच में send you भेजता like हूं। मैं कैसे भेज sheep in the midst of the wolf. कैसे परमेश्वर हमें भेजता है, भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता है। Therefore, wise as serpent इसलिए सांपों के समान and बुद्धिमान harmless as doves. और कबूतरों के समान भोले हो। Hallelujah. हालेलुया। What are the specialities, the common facts in a sheep? ओ भेड़ की खासियत, उनके स्वभाव क्या क्या है। Number one, it is very clever. वो बहुत होशियार है। Number two, दूसरा है it is very clever. ये बहुत ही होशियार जानवर है। Hallelujah. हालेलुया। Sheep can recognize up to 50 other sheep. अब भेड़ उनकी झुंड के 50 और भेड़ों को पहचान सकते हैं And remember them for up to 2 years. और तकरीबन 2 सालों तक वो पूरे 50 भेड़ों को याद रख सकते हैं। Do you know the neighbor's name? क्या आप अपने पड़ोसन के नाम जानते हैं? Praise the Lord, brother. Okay, next week. Brother, what's your name? प्रेज द लॉर्ड भाई कहते हैं, लेकिन अगले हफ्ते पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। What did you say your name? आपका नाम क्या बताया आपने? Better you tell to a sheep, it will remember it for 2 years. बेहतर है कि आप एक भेड़ से वो बोले तो वो 2 साल तक उसे याद करके रखेगा। No. In the community of sheep, they may remember their names. भेड़ों के झुंड में वो इतना याद करते हैं, They remember the faces of minimum 50 of their कम companions. से कम 50 भेड़ों के चेहरे को एक भेड़ याद रख सकता है। They too, what to say, recognize the face of men. इसी तरह वो इंसानों के भी चेहरे को याद रख सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The second thing दूसरी स्वभाव है, दूसरा स्वभाव that everyone knows, they are herbivores, eat only plant वो and शाकाहारी जानवर है, सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, only plants and पत्ते पौधे grass. खाते हैं। Anyway, we are not interested. हमें उस पे लगन नहीं है। If sheep was non-veg, we could have considered it. अगर भेड़ मांसाहारी होते तो हम शायद उसे चाहते। Okay. Third one, तीसरा स्वभाव है they are ruminants. वो Sheep have 4 compartments in their stomachs उसके पेट में 4 कमरे होते हैं, that 4 help them racks ferment होते हैं। plant material and absorb nutrients. They, when they are swallowing something, it will go to one chamber, then to another chamber, then to another chamber. जब एक भेड़ कुछ खाता है तो उसके मुंह से वो सीधा पेट के एक भाग में जाता है, बाद में दूसरे भाग में जाता है, इसी तरह खाने को वो खाता है। When you are sitting in the church, you learn, you grasp all the word of God, go to home, open the Bible where it is, you are meditating and putting it to another compartment, बिल्कुल you are आपकी reading it जैसे- out, how the pastor had taught you how to pray, you are praying and you are practicing. The sheep also does the same. बिल्कुल आपके जैसे आज जब आप कलीसिया में बैठते हैं, ध्यान से वचन सुनते हैं, वचन को बहुत खाते हैं, दिल में रखते हैं, घर में वापस जाके उसी वचन को और भी ध्यान करते हैं, जिस तरह पासबान ने सिखाया उस सबको फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह भेड़ भी खाना खाते हैं। Sheep always needs a leader, a shepherd to take in care, to lead them. भेड़ हमेशा एक चरवाहे को चाहता है ताकि उसको वो सामने से चलाए। They won't get themselves. वो हम कभी भी अपने आप को नहीं चलाता। It used to get the signals, it used to get the instructions. According to that, it moves on. वो हमेशा अपने चराने वाले चरवाहे के इशारों को पहचानते हैं, उनकी आज्ञाओं को पीछा करते हैं और उसके बात को मानते हैं। It has no upper teeth. उनके ऊपरी दांत नहीं होते। That means उसका अर्थ है whatever it is having, it is using it downstream teeth to
chew it and crush it. बहुत ही नरम नरम चीजें ही वो खा सकते हैं, उतने काटने की ताकतवर दांत नहीं होते उसको, That's why it is not biting anyone. इसीलिए वो किसी को काटते नहीं। Our upper teeth are used to हमारे ऊपरी दांत काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। when God sent sheep on this earth, it has removed its upper teeth. जब परमेश्वर ने भेड़ को इस पृथ्वी पर भेजा तो उसके ऊपरी दांत को निकाल के भेजा। Are there any sheep with upper teeth here? क्या यहाँ कोई भेड़ है जिनके ऊपरी दांत भी है? That's what in the house there are lot of bites and difficulties and halchals and violations are going on. इसीलिए घर में बहुत से लोग काटते हैं, झगड़ा करते हैं, डांटते हैं, इस तरह के हलचल होते हैं। If you are a sheep, better remove your upper teeth. I never said that go to the dentist, remove your upper teeth. No, do not take it physically. Do not bite someone else. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि घर में जाके आपके ऊपरी दांत को डेंटिस्ट के द्वारा निकाल दे, लेकिन ऐसा नहीं, हमें झगड़ा नहीं करना है, दूसरों को काट डालना नहीं है। The next one that is very interesting. अगले एक का खासियत स्वभाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है। It has a rectangular pupil. उनके नजर रेक्टेंगुलर शेप में होता है। Sheep have rectangular pupils that उसके give them आँखों- a wide field of vision up to 320 degree. उनके आंखों की नजर जो प्यूपल्स होते हैं उसके लेवल 320 डिग्रीज तक जा सकते हैं। उसका अर्थ है वो ज्यादातर दिशाओं को देख सकते हैं। Without looking around, it can see the entire area. इस तरह मुड़ के देखने के बजाय वो अपनी आंखों की नजर के कारण सब कुछ चारों तरफ देख सकते हैं। The remaining 40 degree anyway, shepherd is here, he will take care. बचे हुए 40 डिग्री उसका चरवाहा देख लेंगे। That means that stay alert at all the time. उसका अर्थ है वो बहुत होशियारी से, बहुत ही संभाल के वो अपने आप को रखता है। And sheep are very social animal. They go in groups. हमेशा भेड़ों को हम देख सकते हैं झुंड में, झुंड बन के वो जाते हैं। It communicate with its bleats. वो अपने आवाज से दूसरों से बात करते हैं। Sheep communicate with each other by bleating. वो एक खास करके आवाज निकाल कर अपनों से बात करते हैं। The male sheep is called ram. पुरुष भेड़ को कहते हैं रैम। Female is called Eve. Eve. EWE है उसका फीमेल जो भेड़ को कहता है ईव। And the baby sheep is called और उसके बच्चे, भेड़ के बच्चे को कहता है lamb. मेमना। And Eve can recognize, or the lamb will recognize its mother with the sound of the bleating. और वो आवाज निकालने के कारण एक मेमना अपने माँ और बाप भेड़ को पहचानते हैं। Okay, these are the common factors or common things in the sheep. एक भेड़ के इतने स्वभाव होते हैं। Now we are going to learn certain portions. If you have a Bible, I request you to quickly turn it. अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोलिए। Zephaniah chapter 3 verses 3. Book of Zephaniah की Zephaniah पुस्तक chapter 3 verses 3. तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन। Her princes within her are roaring lions, her judges are evening wolves. Bible says, बाइबल कहता है सपन्या 3:3 उसके हाकिम गर्जने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार है जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। John, Gospel of John chapter 10 verses 11. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। Gospel of John chapter 10 verses 11. अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। Now we are going to stay here for a few minutes. हम कुछ पलों के लिए इसी वचन में से ध्यान करेंगे। Bible says chapter 10 verses 1. बाइबल कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का पहला Verily, वचन। verily I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold,
but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से छट जाता है वो चोर और डाकू है. You know, devil will not come through the main gate of your life. कभी भी शैतान हमारी जिंदगी के सबसे मुख्य द्वार में से गुजरेगा नहीं और आएगा नहीं. Somebody may say when they have gone to some other place. जब कुछ लोग कहते हैं जब वो किसी दूसरी जगह जाते हैं. Couple of years back, a small girl when she was playing in front of in front of some holy place of some other religion. कुछ और धर्म के कुछ पुण्य स्थान के सामने जब एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी. Her foot got stuck with a small piece of metal. एक लोहे में उसके पैर एकदम फंस गए. There was a small cut and she had a bleed on her leg. उसके पैर में चोट पहुंची और उसमें से खून निकल रहा था. And after the day by day she was getting upset. और दिन ब दिन जाते ही वो बहुत उदास हो रही थी. One day night their parents called up us and requested us to come to their home in the midnight. एक दिन आधी रात को उनके माता पिता ने हमें फोन की और कहा कि उनके घर जाने के लिए. When we were there, it was an 11-year or 12-year girl. जब हम उस घर में पहुंचे, like a demon possessed. जब हम उस घर में पहुंचे तो हमने देखा कि 11 नहीं तो ज्यादा हुए तो 12 साल की एक लड़की थी. वो वहां चिल्ला रही है कुछ देख के. It was a small house like many cottages nearby, so we asked them to bring it to the church. We will pray for them. वो एक छोटा सा घर था, छोटे से ही कमरे थे, इसलिए हमने उनसे कहा कि हम कलीसिया में ही प्रार्थना करेंगे. That small girl was pretending like a very strong woman. वो छोटी सी बच्ची एक बहुत बड़ी एक ताकतवर औरत जैसी बर्ताव कर रही थी. And said something else, some like irrelevant things. उसने चिल्ला के कुछ चीजें बोली. And finally when we have asked, he was carrying a bag and in that one some fish or some meat was there. वो बाजार से आ रहा है, उसके हाथ में एक थैली थी, उसके अंदर कुछ मछली थी. The dog was keep following that person. एक कुत्ता उसका पीछा कर रहे थे. And she started running. ये व्यक्ति भागने लगी. The dog was also following by running. कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भागने लगे. She increased the speed. तो वो अपनी तेजी बढ़ा दी. Dog too increased the speed. और कुत्ता भी तेजी से भागना शुरू किया. Finally both are running like Usain Bolt and the other one. और दोनों बहुत तेजी से भागने लगे. She was crying. वो रो के भागने लगी. Please help, please help. ओ मेरी मदद करो, बचाओ बचाओ करके भाग रही थी. Then somebody was screaming. तो इस चिल्लाहट को सुन के किसी ने कहा, They are not chasing you, they are chasing the bag which you are holding. वो कुत्ता तुम्हारा पीछा नहीं करता, वो कुत्ता तुम्हारे हाथ की थैली का पीछा Just करता throw है. it. उसे जरा फेंक दो. Then that lady, oh it is my machli, it is my fish, my meat. तो वो कहती है कि वो मेरी मछली है, पैसा दे के खरीदा है. Which is more important, your machli or your life? और तुम्हारे लिए क्या मुख्य है, मछली मुख्य है कि तुम्हारी जान? Then finally she knowingly, willingly, unwillingly she had thrown that one. ओ अनजाने में नहीं तो मजबूरी में उसे उस थैली को फेंकना ही पड़ा. The moment the dog stopped following उसी her. पल में कुत्ता उसका पीछा करना बंद कर दिया. What a miracle. ओ क्या चमत्कार है. This will really happen in your life. यही वाकई हमारी जिंदगी में भी होगा. When you carry जब आप कुछ लेके the जाता है, stuff which the devil is offering to you, वो जो शैतान का एक हिस्से को उठा के आपके the हाथ में sins रखता है, which he is offering to you, जो भी शैतान के पास में है, जो आपके हाथ में जब वो आएंगे, throughout your life you are carrying that one. और आपकी पूरी जिंदगी भर आप उसको उठा के जाते हैं. तो Pastor, night there is no sleep for me. वो पासवान, रात को मुझे ठीक से सो भी नहीं What सकता. should I do? मैं क्या करूं? How can I improve my sleeping? कैसे मैं अच्छी तरह से कैसे सोऊं? How I can go peacefully? ओ कैसे शांति के साथ में नींद में जाओ? Only one solution. एक ही हल है. Throw which is not necessary for you. ओ आपके लिए जो भी नहीं चाहिए उसको जरा फेंकिए. Devil is not following you. He can't follow you. शैतान आपका पीछा नहीं करता, आपका पीछा कर भी नहीं सकता. But he is following the holdings of yours. लेकिन उसका जो हिस्सा है जो आपके हाथ में अभी है, उसका पीछा वो let करता that be है. broken down in the name of Jesus. वो सभी शैतान के हिस्से आपकी जिंदगी में चकनाचूर हो जाए. Hallelujah. Hallelujah. Bible says, बाइबल कहता है verses 2, उसका दूसरा वचन, but he that entereth
in by the door is the shepherd of the sheep. परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। I have enough like examples here in the local area. हमारे इसी क्षेत्र में हमें बहुत सारे उदाहरण है। There was a time एक समय था, one uncle used to say, I have lost one of my sheep. एक अंकल जी बोल रहा था मैंने अपने एक भेड़ को खो दिया। One auntie told, I have lost my papaya. एक आंटी ने कहा कि मेरे एक पपाया मैंने खो दिया। I have lost many things. पपीता। Whatever we are like watching for, somebody will stolen without our permission. कुछ जो भी हम बहुत संभाल के रखते हैं किसी दूसरे आके उसे चोरी करके लेके जाता है। Devil is not coming to pick up your broken vessels, broken bucket or broken mug. और शैतान कभी भी आपके टूटे हुए बकेट नहीं तो टूटे हुए थैले नहीं तो टूटे हुए चीजों को उठा के He लेके is जाने के लिए नहीं interested आएगा। in the treasureful wealth that is your heart. वो हमेशा आपके अंदर जो एकदम महंगी है उसको लेने के लिए आएगा। वो आपका दिल है, हृदय है। Open it to the God, उसी दिल को परमेश्वर के लिए खोलिए and the shepherd will come into your life. और वही चरवाहा आपकी जिंदगी में आएगा। Verses 3. तीसरा वचन, To him the porter opened, and the sheep hear his voice. उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका शब्द सुनती है और वो अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। And he calleth his own sheep by name and leadeth them out. और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। Hallelujah. हालेलुया। He knew everyone's name. वो एक एक भेड़ का नाम उसे पता है। He called out his own sheep. वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। In that cattle field, वो उस जानवरों के घर में the shepherd knows which one is having more hunger, which one is which one is thirst. चरवाहे को अच्छी तरह पता है कि किस भेड़ को बहुत ज्यादा प्यास है, ज्यादा भूखापन है, वो सब कुछ जानता है। Hallelujah. हालेलुया। God knows who is seeking for a job, who is looking for a marriage, who is looking for to pay off your debts. He knows everything in your इसी life. तरह परमेश्वर भी अच्छी तरह जानता है कि किसको शादी की जरूरत है, किसको काम की जरूरत है, किसको अपने कर्ज चुकाने की जरूरत है, सब जानते हैं वो। If he is your shepherd, अगर वो आपका चरवाहा है तो he knows how to take care of you. आपको संभालने के लिए वो अच्छी तरह जानता है। Hallelujah. हालेलुया। Tomorrow onwards, कल से लेके better tonight onwards, नहीं तो आज रात से लेके let us confess, Lord, I am the sheep and you are my shepherd. अपने अपने मुंह से अंगीकार करें कि हे परमेश्वर मैं आपका भेड़ हूँ और आप मेरा चरवाहा है। How many of you believe in Jesus Christ? कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? I will tell you one Hallelujah. example, then we will wind it up. मैं एक उदाहरण बोलूंगा और समाप्त करूंगा। How many of you know Psalms 23? कितने लोगों को पता है भजन संहिता 23? Psalms 23 verses 1. भजन संहिता 23 का 1। The Lord is my यहोवा shepherd. मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे कुछ घटी नहीं होगी। Enough. One day, एक दिन in a Sunday school, one teacher was teaching to his students. एक संडे स्कूल में शिक्षक अपने बच्चों को सिखा रहे थे। And he was trying to teach, the Lord is your shepherd and you shall not want anything. वो पर यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हें कुछ घटी नहीं होगी। शिक्षक अपने बच्चे को सिखा रहा था। One new student has joined to the class. एक नई विद्यार्थी उस क्लास में ज्वाइन किए। How much ever time he tries to teach, कितने भी कोशिश उन्होंने किया कि उसे सिखाए, that's not going inside of him. वो उस बच्चे के अंदर में बिल्कुल नहीं जा रहा था। Then the master taught him with an action. तो शिक्षक ने इशारों से उनको कुछ सिखाया। Open your hand, तुम्हारे हथेली को इस तरह hold खोलो your finger like this और तुम्हारे उंगली को इस तरह रखो and say, Lord is my shepherd. और तुम्हें बताना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है। This is you and this is a shepherd. और तुम्हें ये समझना है कि ये परमेश्वर है ये और ये तुम हो। And he taught in such a way उन्होंने इस तरह उन्हें सिखाया and intimated, next week you have to learn it and come. और उन्हें बताया कि अगले हफ्ते जब तुम आओगे तो उसे सीख के आओ। It was very long time. वो बहुत समय लगा। Next week that the guy didn't come. वो अगले हफ्ते
हफ्ते वो बच्चा नहीं आया, Even on the next week also he didn't come. उसके अगले हफ्ते भी वो बच्चा नहीं आया। The teacher was a bit curious. What happened to him? शिक्षक को थोड़ा सा परेशानी हुआ, वो पूछने लगे कि उस बच्चे को क्या हुआ। And he heard उन्होंने सुना from that area somebody had passed away. उस क्षेत्र से, उस जगह से एक व्यक्ति की मौत हुई। He gone into that place. वो उस जगह गए, Then come to know that और उन्हें पता चला कि that child has been passed away. और उसी बच्चे की मृत्यु हुई। And when he had reached to that home, जब वो उस बच्चे के घर पहुंचे, it was a typical village without any medicine due to some viral or some infections. That boy got passed वो away. एक बिल्कुल पक्का एक गांव था, वहाँ इलाज नहीं मिलता था, दवाई नहीं मिलते थे, इस कारण से उस बच्चे को बुखार आए और उसकी मौत हुई। The parents were crying. और उसके माता पिता रो रहे थे। And he gone to see that body. वो उस बच्चे की लाश को देखने के लिए वहाँ गए। A small body was covered with a white छोटा cloth. सा एक शरीर वहाँ सफेद कपड़ों से लिपटा हुआ वहाँ रखा था। He had seen on the chest something was some pillow type or something is like a cushioned up. उन्होंने देखा कि उस बच्चे के सीने पर कुछ इस तरह का थोड़ा सा ऊंचा दिख रहा He है। asked what it is. उन्होंने उन लोगों से पूछा कि उन्हें क्या हुआ, क्या Then है। the mother cried. तो माँ रोने लगी। When he was about to die, जब उसके मृत्यु के आखिरी पल में वो थे, he used to show some action. वो कुछ इशारे जोर जोर से इशारे कर रहे थे। He's bringing both his hands and holding like this. वो अपने दोनों हाथों को इस तरह बहुत ही जोर से पास में लेके आते थे। We have tried a lot to separate the hands. उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश की थी कि उनके दोनों हाथों को इस तरह अलग कर दे, But it couldn't. लेकिन वो नहीं कर पाए। बच्चा इतनी शक्ति से उसको लेके आ रहे थे। That master came to know तो शिक्षक को पता चला to make the child connect with the shepherd. वो उस बच्चे को अपने चरवाहे से जुड़ाने के A लिए single act एक ही इशारा, that had helped his eternity. वो उसको उसे अनंत जीवन तक उस इशारे ने उसको संभाले। I don't know why so quickly, वो मुझे नहीं पता कि क्यों इतनी तेजी से, but one thing for sure, लेकिन एक बात निश्चय है, well before he departs from this earth, वो वहाँ इस पृथ्वी को छोड़ के जाने से पहले he got the connection with his shepherd. उनको अपने चरवाहे के साथ एक अच्छा रिश्ता मिला। Hallelujah. Yes, Lord, He's a hallelujah. good shepherd. वो एक अच्छा चरवाहा है। He's a good shepherd. वो अच्छा चरवाहा He है। takes care of you. वो भेड़ों के आपकी रखवाली करता है। Whatever your need it is. जो भी आपकी जरूरत है, Bible says it very clearly. बाइबल स्पष्ट रूप से ये कहता है। You may have limitations. आपको शायद कमजोरियां होंगे, You have a limited salary. आपको कुछ थोड़े से ही तनख्वाह मिल रहे You have होंगे, limited income to take शायद care of your आपकी family. तनख्वाह आपकी जिंदगी बिताने के लिए बहुत कम होंगे। You have limited money. You have limited boundaries. You have a lot many things in आपकी limitations. जिंदगी में बहुत सारी चीजें सीमित होंगे, बहुत घटिया होंगे, But your God, लेकिन आपका परमेश्वर He's a limitless God. वो एक असीम परमेश्वर है। And Bible says और बाइबल कहता है, He is your shepherd. और वो ही आपका भी He चरवाहा calls out है। your name. वो आपको नाम लेके His बुलाता है। sheep hears His voice. और जब भेड़ उनके आवाज को पहचान सुनता है, Verses 4, let me wind it up. 4 उसका and चौथा 5. वचन, We will read it 4 and 5 and we'll wind it up. 23 भजन संहिता के चौथा और पांचवा वचन पढ़ेंगे और Gospel of John chapter 10 verses 4 and 5. यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय के चौथा और पांचवा वचन। When he put forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। And a stranger will they not follow, but flee from him, for they know not the voice of the strangers. परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। Verses 9. I उसका am the नौवां door. वचन, By me if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep.
और मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अपने भेड़ों के लिए अपने जान देता हूँ। Bible says बाइबल कहता है Jesus is the good shepherd. यीशु मसीह ही अच्छा चरवाहा He है। gave his life for you. उन्होंने अपना प्राण आपके लिए दे दिया You are the sheep of his flock. और आप उनके झुंड के भेड़ हैं। Hallelujah. हालेलुया। In this evening, इस शाम को brethren, Lord loves you. भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Till today, I haven't ever seen a sheep which is asking shepherd, what is my next meal tomorrow? What I am going to have it. आज तक मैंने इस तरह के एक भी भेड़ को नहीं देखा जो पूछता है अपने चरवाहे से कल के लिए मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। But a believer used to say, Lord, what will happen if I am not having food for tomorrow? लेकिन एक विश्वासी इस तरह पूछते हैं कि परमेश्वर अगर मेरे लिए कल खाना नहीं है तो। God had provided for you. परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। He had planned for you. आपके लिए उनकी एक योजना है। The sheep needs to just trust on Him. ओ भेड़ को यूं ही अपने चरवाहे पर भरोसा रखना है। Can't we put our confidence in Him? क्या हम भी अपना धैर्य परमेश्वर पर रख सकता This है? many days you might have kept your confidence in many. ओ आज तक आपने बहुतों पर अपने हिम्मत को रखा The होगा। money may go away. वो पैसा छूट जाएगा, The relations can be broken. रिश्ते टूट जाएंगे, And all the things what we are seeing today that may go away from our आज जो life. भी हम देखते हैं, जिस पर भी हम भरोसा रखें, But सब there कुछ is a एक दिन छोड़ के living जाएगा। shepherd. लेकिन एक जिंदा चरवाहा है। And the generation, those whom trust in Him, they are the blessed Yes, Lord. one. और उस पीढ़ी जिसने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा है, वो ही धन्य है। Shall we close our eyes and pray for a while? क्या हम अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें? Abba Heavenly Father, we thank you for this blessed evening. पिता परमेश्वर, इस अच्छे से शाम के लिए धन्यवाद करते We हैं। thank you that you are the wonderful and great shepherd for us. हमारे लिए आप एक अच्छा और महान चरवाहा होने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for keeping us inside your flock. आपके झुंड के अंदर हमें भी रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for redeeming us by paying your life. वो आपकी जान छुड़ा के हमें छुड़ाने के लिए We trust धन्यवाद। you, Lord Father. हम आप पर भरोसा रखते हैं As परमेश्वर। you have sent us to this world, जैसे आपने हमें इस दुनिया में भेजा है, I am sending you as like the sheep in the midst of wolves. यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ों के समा भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। We won't fear any terror और हम किसी भी खतरनाक से डरते नहीं, because the shepherd goes in front of us. क्योंकि हमारा चरवाहा हमारे सामने जाता The है। one who called up us, और जिन्होंने हमें He बुलाया, is in the right in the front of us. वो हमें रोशनी दिखा कि वो आगे जाता Whatever the है। difficulty comes cross in your ways, जो भी मुसीबतें आपके रास्ते में आएंगे, sheep, you no need to worry. भेड़ को उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं Your है, shepherd is going to deal with क्योंकि that. चरवाहा उससे मामला लेगा, Your करेगा। shepherd is not a human. और आपका चरवाहा एक इंसान नहीं He है, is the creator of this entire वो universe. इस पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, He is the creator of everything. वो इस सब कुछ सृष्टि करने वाला And He is the परमेश्वर है, creator of yours. और वो आपको भी सृष्टि करने वाला Let's है। be thankful to the Lord. हमें परमेश्वर की धन्यवाद करें Abba हम। Heavenly Father, we thank you for this blessed पिता time. परमेश्वर इस अनुग्रही समय के लिए धन्यवाद। Thank you for being our shepherd. हमारा चरवाहा होने के लिए धन्यवाद करते You are हैं। gone. Thank you for going in front of us. हमारे सामने आगे आगे जाने के लिए धन्यवाद In प्रभु। this week, when the people are going, ओ इस हफ्ते जब लोग जाएंगे, when they are going for their exams, जब उनकी परीक्षा के लिए वो when they are जाएंगे, going for their job, जब उनके काम के लिए वो when they are going जाएंगे, for their need, जो उनकी जरूरतें के लिए जो as जाएंगे, the वो wonderful shepherd, you be there in the front of them, Lord एक Father. अच्छा चरवाहे के रूप में आप उनके आगे आगे चलिए When they are प्रभु। going for the ministry, जब वो सेवकारी के लिए when they जाएंगे, are taking care of anything in their life, जब उनकी जिंदगी की रखवाली जब वो करते by हैं, being an obedient sheep of yours, एक भेड़ जो आज्ञाकारी होते हैं, give us the courage and braveness to obey your voice alone. हमें भी आपकी आवाज और आपके वचन को सुनने और मानने की कृपा दे Sheep did दीजिए। not listen to the strangers. भेड़ कभी भी अपरिचित व्यक्ति की आवाज नहीं सुनते। If any strange voice is coming closer to you जो भी एक अनजाने आवाज उनके पास आते हैं to तो take you out from the love of Christ, यीशु मसीह के प्यार में से आपको छुड़ाने वाला do प्यार, not give your ear to that. उसके लिए एक मौका मत दे That is दीजिए, not the voice of your master. क्योंकि वो
आपके मालिक की आवाज नहीं है। A sheep knows the voice of the master. भेड़ अच्छी तरह अपने मालिक की आवाज पहचानता है। Obey to the voice of Jesus. और यीशु मसीह की आवाज को आप सुनिए। Your life shall be blessed. आपकी जिंदगी आशीर्वाद हो जाएंगे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. Jesus. Amen. Amen. Thank you for being with us. हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद।